Hello everyone, welcome back to the channel of AgriMoon once again. So this is a beautiful channel of AgriMoon in the platform of YouTube. So I hope the content provided here is worthwhile for you. If it was, do not forget to hit the like button and to subscribe to our channel. So this is lecture 2 series of horticulture. तो horticulture का lecture 2 आज हम discuss करने वाले हैं and previously lecture 1 we have uploaded. Link will be there in the description box. You can go and check it out as well, right? So now yeah, before starting with the topic, one thing I would like to note you out that we also have a website named www.agrimoon.com, from where you can access to the PDFs and the hard soft copy of the book and such stuffs. So you can go there and visit the website, and the contents are there. You can access to them as well. And apart from that, we also have an application which is available on the Google Play Store, from where you can access the notes, PDFs, and apart from that, test series are also available. So that is really advantageous for the students who are solemnly dedicated towards their preparation, right? So we also have a WhatsApp group in this number. You can join through this, and this is our Telegram channel. You can go search it out and you can easily join over there as well. You can follow us on Instagram and Facebook, right? So I am Deepjani Pandit, and today we will be discussing the important climatic requirements of horticultural crops. So without wasting much time, let's get started into the content, right? So see, first of all, we need to know that climatic requirement of horticultural crop is really a very important factor for their growth and development. तो horticultural crops के लिए जो उनका जो climatic requirement है वो बहुत ज़्यादा specific होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं तो obvious सी बात है कि कोई भी पौधा या फिर कोई भी fruits, कोई भी vegetable कहीं पे भी उग जाता है, right? So ऐसा नहीं होता. That's because of which कि climatic condition हर crop के लिए अलग अलग set किया हुआ है. According to that they grow. So that's why the climatic requirement is really a very important factor for the growth and proper development of horticultural crops. So yes, that's what it said in this slide, that climate is one of the major factor of growth and development of quality of the crops. So quality of the crop जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है किस पे, क्लाइमेट पे. सो बहुत हद तक हम आगे देखेंगे इसी लेक्चर पे हम आगे देखने वाले हैं कि हाउ द क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर इफेक्टिंग द क्रॉप्स डेवलपमेंट. So understanding the climatic requirement is very essential for getting a good growth and development of the crop. तो जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं किसी भी क्रॉप की ग्रोथ और डेवलपमेंट के पैटर्न में. कोई क्रॉप होता है जिसे सनलाइट ज़्यादा चाहिए होता है, कोई क्रॉप होता है जिसे सनलाइट कम चाहिए होता है. तो वो डिपेंड करता है क्रॉप की रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्रॉप कैसे मतलब चीज़ें कैसे लेके चलता है क्रॉप, राइट? सो हम सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होता है. क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन, यस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट. सो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट या फिर आप कह सकते हो क्लाइमेट. सो क्लाइमेट इज बेसिकली यू कैन से द ओवरऑल ड्यूरेशन, मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह की ड्यूरेशन का कैसा ओवरऑल सीजनल वेरिएशन रहेगा, सनलाइट का, रेनफॉल का, और फिर विंड का, ह्यूमिडिटी का, इस सब को सारी चीज़ों को मिलाकर फॉर एन अराउंड एवरेज ऑफ 30 ईयर्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट. तो ये क्लाइमेट का डेफिनेशन है, और इसी के रिक्वायरमेंट को इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर इज रेफर्ड एज रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइमेट इन द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब पहला फैक्टर, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिफर करते हैं, तो उसमें से पहला फैक्टर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट. तो लाइट इज़ अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. तो देख लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है. तो जो पॉइंट्स को स्टार मार्क करके आप अपने कॉपी में साथ में उतारते रहिएगा, बिकॉज दैट विल बी हेल्पफुल. So yes, the light of wavelength 4000 to 7700 angstrom is considered good
फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए जो बेस्ट ग्रोथ मतलब लाइट का जो ड्यूरेशन या फिर लाइट का जो आप कह सकते हो वेव लेंथ है जो बेस्ट कंसिडर किया जाता है वो 4000 से 7700 एंगस्ट्रॉम कंसिडर किया जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट इज light propagates with a speed of around 540 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये है प्रोपागेशन रेट जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो नंबर 1 पॉइंट हमने पढ़ा कि वेवलेंथ जो कि 4000 से 7700 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है वो फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बढ़िया होता है। देन जो प्रोपागेशन रेट होता है वो 540 किलोमीटर्स पर आवर होना चाहिए। Now the next point on the yes, next point is lights play a major role in the process of photosynthesis and thus important for the growth and development। तो आपको ये बात तो पता होगा कि yes, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि क्या आपको फोटोसिंथेसिस का जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो आता है। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में यस अपकमिंग लेक्चर्स में आई विल डिस्कस दैट एज वेल। सो लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के में लाइट का एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है बिकॉज वो जो रिएक्शन है उसमें न्यू ये काम करता है लाइट, राइट। So generally horticultural crops required a lot of light for its smooth growth and development। तो horticultural crops जो है उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी स्मूथ ग्रोथ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो basically we have understood from this two slides that light plays a very major role in the growth and the development of horticultural crops। और हाँ, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं एक बार रिकैप दे देते हैं। हॉर्टिकल्चर में देखिए एग्रीकल्चर जो है मेन ब्रांच है, उसका सब ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर के फर्दर 8 ब्रांचेस होते हैं, 8 ब्रांचेस होते हैं। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो तो ऑब्वियसली आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। लेक्चर 1 का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ से जाके पहले लेक्चर 1 देखिए फिर आप लेक्चर 2 पे आइए सो दैट देयर विल बी अ कंटिन्यूटी। तो प्रॉपर कंटिन्यूशन को मेंटेन करने के लिए पहले लेक्चर 1 देखिए फिर लेक्चर 2 देखिए तो आपको भी चीज़ें काफ़ी हद तक जल्दी समझ में आएंगी, राइट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब आते हैं लाइट। सो लाइट जो है, लाइट की जो काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस होती है, हर वक्त लाइट एक प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं होती है, राइट। काफ़ी जगह पे शेड्स वगैरह होती हैं। तो अब शेड रिक्वायरमेंट को अब देखेंगे। सो शेड में रिक्वायरमेंट इन प्लांट इज बेसिकली और डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। तो 3 टाइप से इसे डिवाइड किया गया है। पहला शेड टॉलरेंट। तो शेड टॉलरेंट प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू टॉलरेट शेड। मतलब ऐसे प्लांट्स जिन्हें छाया छाया को टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। मतलब अगर वो छाया पे भी लगाए जाए तो दे विल मैनेज देयर ग्रोथ एंड दे विल गिव अ गुड एल्ड। तो वो कौन कौन से हैं एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स आपको स्पेसिफिकली नोट आउट करना है बिकॉज क्योंकि लास्ट तक जब आप पढ़ोगे ना तब आपको एग्जाम्पल को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा जो कि नहीं होना चाहिए, राइट। बिकॉज एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो शेड टॉलरेंट में क्या है हमारा टर्मरिक और जिंजर, टर्मरिक और जिंजर आ जाता है शेड टॉलरेंट में। नेक्स्ट इज द रिक्वायर्ड शेड इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लाइफ। तो लाइफ टाइम के पर्टिकुलर पार्ट में सपोज ये है, ये हो गया ग्रोथ पीरियड, सॉरी ये हो गया इनिशियल पीरियड और ये हो गया सेनेसेंट पीरियड। तो कोई एक पर्टिकुलर पार्ट में जैसे कि फ्लावरिंग के पार्ट में पर्टिकुलरली चाहिए हुआ सनलाइट या फिर उस पार्ट में शेड होने से भी चलेगा। सो दैट पर्टिकुलर लाइफ टाइम के पार्ट में उन्हें शेड चाहिए होता है। ये कौन से प्लांट्स हैं? तो ये है ज़्यादातर ये जो है ये प्लांटेशन क्रॉप्स है, दैट इज टी, कॉफ़ी एंड मैंगोस्टेन। तो टी, कॉफ़ी और मैंगोस्टेन ये तीन एग्जाम्पल है शेड रिक्वायर्ड एट अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन ऑफ टाइम, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिक्वायर परमानेंट शेड फॉर देयर ग्रोथ। अब ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं या फिर ऐसे भी कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अवेलेबल हैं जिन्हें परमानेंट शेड की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप कह सकते हो दैट लाइट रिक्वायरमेंट फॉर दैट टाइप ऑफ क्रॉप इज क्वाइट लो। लो तो नहीं कहेंगे बट येस दे हैव अ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर देयर ग्रोथ। सो ऐसे कुछ पौधे भी देख लेते हैं। नंबर 1 इज सेलेक्ट प्लाम, सेकेंड इज डिक्यू एंड थर्ड इज कैरम्बोला। सो कैरम्बोला, ये तीनों के एग्जाम्पल्स आपको स्पेसिफिकली नोट करने हैं। तो एक और बार देख लेते हैं। शेड टॉलरेंट है टर्मरिक और जिंजर। शेड रिक्वायर्ड एट अ पर्टिकुलर लाइफ टाइम
वो है टी, कॉफ़ी और मैंगोस्टेन। और परमानेंट शेड रिक्वायरमेंट है सेलेक्ट प्लाम, ड्यूक्यू एंड कैरम्बोला। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट फोटो पीरियडिज्म। तो फोटो पीरियडिज्म किसे कहते हैं? बेसिकली जो लाइट का जो टाइम स्पैन है किसी भी क्रॉप के लिए, उसे ही हम फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। मतलब कि एक प्लांट को एक दिन में कितनी ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज़ कि देखिए, हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्लांट, सॉरी थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट, फाइन। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स। सो one is short day plant, second is long day plant, and the third is डे न्यूट्रल प्लांट। तो तीन टाइप के प्लांट होते हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो उससे भी पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द कंसेप्ट ऑफ फोटो पीरियडिज्म। सो फोटो पीरियडिज्म इज बेसिकली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर द टाइम elapsing between the dawn and dusk referred as the photo period or day length। ये जो आपका ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर। 2 मार्क्स के अंदर ये डेफिनेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो डेफिनेशन आप ज़रूर से नोट आउट कर ले, और एग्जाम्पल्स तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही टाइप्स के साथ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, राइट। सो पहले हम मतलब इजी भाषा में समझते हैं कि फोटो पीरियडिज्म क्या होता है। बेसिकली फोटो पीरियडिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सपोज हमारे पास 24 आवर्स होते हैं दिन में। तो उन 24 आवर्स में से कितना ड्यूरेशन लाइट एक पौधे को चाहिए होता है, उसी कॉन्सेप्ट को फोटो पीरियडिज्म का नाम दिया गया है। Am I clear? If not, let me know in the comment section so that I could clear it out again. I don't have any issues regarding that, because हम यही यहाँ पे इसीलिए हैं so that we can clear all your doubts, right? So फोटो पीरियडिज्म का ये कॉन्सेप्ट है, और फोटो पीरियडिज्म को बेसिकली तीन पार्ट, थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो क्या क्या है वो टाइप्स? नंबर 1 इज लॉन्ग डे प्लांट, नंबर 2 इज शॉर्ट डे प्लांट, एंड नंबर 3 इज डे न्यूट्रल प्लांट। तो हमने क्या कहा कि फोटो पीरियडिज्म की तीन टाइप है। अब उन टाइप्स को डिस्कस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स को याद रखना, राइट। तो एग्जाम में सीधे सीधे एक क्वेश्चन बनता है, दिस कुड बी ऑफ 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स, आई गेस, यस। सो नंबर 1 इज डिफाइन का क्वेश्चन बनता है, डिफाइन फोटो पीरियडिज्म। नेक्स्ट इसके साथ दे देते हैं राइट द टाइप्स ऑफ फोटो पीरियडिज्म, टाइप्स पूछ लेते हैं फोटो पीरियडिज्म का, और उसी के साथ देते हैं कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, फोटो पीरियडिज्म से। और इफ अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया तो आपको ये 3 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसे बना रहा है। तो अगर आपने ये लेक्चर देख लिया और प्रॉपर नोट्स बना लिए तो 5 मार्क्स तो आपके हो गए हॉर्टिकल्चर के, राइट। सो लेट्स डिस्कस नाउ। मैंने इंपॉर्टेंस तो बता दिया है, नाउ लेट्स डिस्कस कि लॉन्ग डे प्लान और शॉर्ट डे प्लान क्या होते हैं। तो लॉन्ग डे प्लान्स ऐसे प्लान्स होते हैं, पहले डिस्कस करेंगे लॉन्ग डे प्लान्स को, ओके। तो लॉन्ग डे प्लान्स क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लान्स एक ऐसे टाइप के प्लान्स होते हैं जिन्हें अपने लाइफ टाइम में दिन में 24 आवर्स में से 12 घंटे, 12 घंटे प्लस की सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें अपने लाइफ टाइम में 12 घंटे से ज़्यादा दिन में सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, एग्जाम्पल हम स्लाइड्स में जाके डिस्कस करेंगे, फाइन। अब आते हैं शॉर्ट डे प्लान के ऊपर। तो दूसरा है शॉर्ट डे प्लान। तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट डे प्लांट्स जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें 12 घंटे की ज़रूरत नहीं होती है, दे नीड लेस, तो 8 to 10 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। अब तीसरा टाइप आता है एक और, दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं? तो 3 नंबर है, थर्ड टाइप ऑफ फोटो पीरियडिज्म इज डे न्यूट्रल प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो अब लिखते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होता है। तो डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें रेंज होता है 12 से 8 आवर्स के बीच में, जिन्हें सनलाइट चाहिए होता है। तो 8 से 12 के बीच में जो आवर्स होते हैं सनलाइट के, वो चाहिए होता है, दैट आर रेफर्ड एज
डे न्यूट्रल प्लांट। तो आई होप कि लॉन्ग ड्यूरेशन प्लांट, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं बैक टू द स्लाइड्स एंड लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो लॉन्ग डे प्लान के एग्जाम्पल में आता है कैबेज, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, बीट, रेडिश, कैरेट, स्पिनच एंड पोटैटो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको कॉपी में स्पेसिफिकली नोट आउट करने हैं। देन द शॉर्ट डे प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें 8 से 10 घंटे की सनलाइट दिन में चाहिए होती है, राइट। तो दे आर स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, फिर क्रिसेंथेमम, ये दिस इज अ फ्लावर, फ्लोरिकल्चर है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। देन इज पॉइंसेटिया, देन एस्टर, बैल्सम एंड सेल्विया, ये एग्जाम्पल है शॉर्ट डे प्लांट के। देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द डे न्यूट्रल प्लांट। तो डे न्यूट्रल प्लांट में आते हैं टोमेटो, पेपर, cucumber, snapdragon, mirabilis, jalapa एंड सर्टेन वेराइटीज ऑफ पी। तो ये आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर। ये सारे तीनों के ही जो एग्जाम्पल है आपको नोट आउट करने हैं कॉपी में, बिकॉज दे आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काफ़ी बार तो ये क्वेश्चंस जो है सीधे यही से पूछ लिया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। यस, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, हीट, या फिर इसे हीट या फिर आप कह सकते हो टेम्परेचर भी, ठीक है। हीट या फिर टेम्परेचर, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। So heat is defined as the temperature difference between a system and a surrounding. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, उसे ही हीट डिफाइन किया गया है। सो सिस्टम और सराउंडिंग, आपने क्लास 12th में जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपने ये वाला पार्ट तो ज़रूर पढ़ा होगा थर्मोडाइनमिक्स में। ओके, सो दिस सपोज दिस इज आवर सिस्टम, दिस इज आवर सिस्टम एंड द अराउंड द जो आसपास का एरिया है इसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। क्या कहेंगे, सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट, राइट। तो सिस्टम इज समथिंग विच इज अंडर द सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट और सराउंडिंग के बीच में एक ऐसा एक एक ऐसा फाउंडेशन हो जाता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम, जिसके अंदर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी करते हैं। फाइन, सो दैट इज रेफर्ड एज सिस्टम। सो नाउ लेट्स गेट बैक। द ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के ऊपर जो है ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रोथ के ऊपर जो है टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, राइट। So a plant growing normally in the sea level grows slowly in the mountain range. Example, lactan banana has growth cycle of 13 months in sea level but takes around 14 months to grow at an altitude of 100 मीटर। सो देखिए, ग्रोथ और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। बेसिकली ग्रोथ is directली proportional to temperature, but after a certain point, मतलब कि इसकी एक लिमिटेशन होती है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो ग्रोथ और टेम्परेचर का यहाँ पे हम रख लेते हैं ग्रोथ को और यहाँ पे हम रख लेते हैं टेम्परेचर को, राइट। तो इसका जो कर्व होगा ना वो कुछ इस तरीके से डिग्रेड करेगा। बिकॉज देखिए, जब जब टेम्परेचर कम रहेगा, एकदम कम रहेगा, ये ज़ीरो मान लेते हैं, एकदम कम रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रोथ भी कम होगा। बट जैसे जैसे ऑप्टिमम में पहुंचेगा, ऑप्टिमम कितना होता है 26 से लेके 28, जब यहाँ तक पहुंचेगा देन द ग्रोथ विल बी प्रिटी गुड। बट जैसे ही फिर 35-40 वगैरह क्रॉस करेगा, देन अगेन देन द कर्व विल अटेन सैचुरेशन। कर्व जो है सैचुरेशन पॉइंट अटेन कर लेगा। जैसे ही फर्दर बढ़ेगा 60 या 70, तो ऑब्वियसली बात है द प्लांट विल नॉट बी एबल टू ग्रो एनी मोर एंड इट विल डिटोरिएट, मतलब प्लांट का सीनेसेंस या फिर आप कह सकते हैं डेथ स्टेट आ जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ किसका, हीट और ग्रोथ के बीच का, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक। सो एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है रिगार्डिंग द लैक्टन बनाना। वो जो है उसका जो ग्रोथ है 13 मंथ होता है ड्यूरेशन इन सी लेवल में। अगर उसे हम 100 मीटर ऊपर के ऑल्टीट्यूड में लेकर जाते हैं तो उसका जो ग्रोथ टाइम है वो 14 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स हीट और टेम्परेचर प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट,
right? Now let's move forward towards the other point, or we can say the base of heat temperature variation. The surface of the earth have following climates. So अब हमने कैटेगराइज किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द हीट टेम्परेचर, मतलब हीट के टेम्परेचर के हिसाब से हमने अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल. सो ये भी आप कह सकते हो हीट एंड टेम्परेचर का ही एक्सटेंशन है. इस डिवीजन का मेन मकसद क्या है? इस डिवीजन का मेन मकसद है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा प्लांट किस डिवीजन में ग्रो कर रहा है, एंड स्टडी विल बी रियली ईजी फॉर अस. फॉर दैट पर्पस वी हैव डिवाइडेड. सो पहला है टेम्परेट. सो टेम्परेट में क्या क्या पॉइंट्स हैं? टेम्परेट, हम ये जो पॉइंट्स हैं हम ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट? 6th 7th में ही जो लोग CBSE या फिर NCERT पढ़ रहे हो, तो यू विल लेट टू नो रिगार्डिंग ऑल दिस फ्रॉम 7th और 8th क्लास. So yes, let's discuss the temperate. To temperate, distinct winter, summer, autumn and temperature below freezing in winter. तो यहाँ पे temperate का मोटा मोटा अगर हम जाने तो विंटर सीजन को टेम्परेट कहते हैं, और स्पेसिफिकली इन विंटर्स जो है टेम्परेट रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है. एंड एग्जाम्पल, मतलब कि जो क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, दे आर एप्पल, पियर, पर्च एंड प्लम. तो एप्पल, पियर, पीच एंड प्लम जो है वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादातर पाए जाते हैं. अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स टेम्परेट रीजन में लाई करते हैं. दैट इज फॉर योर होमवर्क, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रॉपिकल पॉइंट. इक्वेबल क्लाइमेट विथ नो डिस्टिंक्ट विंटर्स. तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है समर और विंटर के बीच में. तो समर और विंटर के बीच में ट्रॉपिकल में कोई ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं पाया जाता है. तो द क्लाइमेटिक कंडीशन आर ओवरऑल द सेम, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही डिफर करेगी, राइट? सो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप्स के, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के. दे आर मैंगो, बनाना, पपाया, सपोटा एंड कोकोनट. तो ये सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं. अब एक और काम है आपका, दैट इज आपको ये भी बताना है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स जो है ट्रॉपिकल जोन में आते हैं. यू हैव टू राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का भी, तीनों का लिखना है आपको अलग अलग, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस द सब ट्रॉपिकल. तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैव डिस्टिंक्ट विंटर एंड समर. तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है? डिस्टिंक्ट विंटर और समर पाया जाता है. समर और विंटर के बीच में प्रॉपर डिस्टिंक्शन होता है इन केस ऑफ ट्रॉपिकल केस. सो सब ट्रॉपिकल केस में जो है डिस्टिंक्शन इज प्रॉपर बिटवीन द विंटर एंड समर. तो जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं दैट इज गुआवा, ग्रेप्स, सिट्रस, डेट प्लम एंड लीची. सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आपको नोट आउट करके इन्हें लर्न भी करना है, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. अब हमने समर और विंटर पढ़ लिया, तो समर और विंटर के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, मतलब आपको पूछ लिया जाएगा कि समर को स्पेसिफिकली रबी क्रॉप्स कहते हैं, सॉरी खरीफ क्रॉप कहते हैं, वार्म सीजन को कहते हैं खरीफ एंड विंटर सीजन को कहते हैं रबी. ओके, विंटर सीजन को कहते हैं रबी. तो इनका क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जामिनेशन में. सो वार्म सीजन के हैं बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, ब्रिंजल, टमाटो, ओखरा, सनफ्लावर, एमरेंथस. एमरेंथस इज बेसिकली अ वीट, राइट? कोचिया, जिनिया. तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं वार्म सीजन के. देन विंटर सीजन दैट इज रबी सीजन के, दैट इज कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी, बीन्स, पोटैटो, ऑनियन, कैरेट, रेडिश, डालिया एंड पैंसी. तो ये एग्जाम्पल हो गए रबी सीजन के. तो एग्जाम्पल्स आपको नोट आउट करने हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड 2 फैक्टर्स अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं. हमने कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं? नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है लाइट, राइट? नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया है टेम्परेचर, या फिर आप कह सकते हो हीट. तो ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरी पॉइंट. सो लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट, दैट इज वाटर. So water, it is essential for the plant growth and development as 70% of the plant body is made up of water.
तो 70% जो प्लांट की बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर. दैट्स वाई वाटर इज अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ. So water is a major constituent of photosynthesis. Again, water is a major constituent of photosynthesis. So photosynthesis में भी water का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है. That's why the water is again a major factor for the growth and development of the plant. It has a prime role in the regulation of temperature of plant body and distribution of metabolics and nutrients. तो water जो है एक काफ़ी important water जो है एक काफ़ी important role जो है play करता है to regulate or we can say to control the temperature of the plant. प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन, तो उस प्रोसेस को, वो जो फिनोमेना है उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन. सो दैट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट पार्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, राइट. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबॉलिक्स एंड न्यूट्रिएंट्स, तो वाटर के साथ साथ ही जो है बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि K+आयन, देन Na+आयन, ये सब जो भी है वो भी ट्रांसफ़र होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ ही. सो दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फैक्टर्स ऑन विच वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड्स. तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर वाटर की रिक्वायरमेंट जो है डिपेंड करती है. सो द नंबर 1 इज़ टाइप ऑफ सॉइल. तो टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर जो है डिपेंड करती है वाटर कितना चाहिए. सपोज क्लेई सॉइल है तो जाहिर सी बात है वाटर रिक्वायरमेंट विल बी कंपैरेटिवली लेस बिकॉज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ क्लेई सॉइल इज़ वेरी हाई. देन अगर सैंडी सॉइल रहा तो बार बार आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी बिकॉज सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन. तो अगर आप जहाँ पे क्रॉप ग्रो कर रहे हो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहा, राइट, काफ़ी टेम्परेचर अगर काफ़ी ज़्यादा हाई रहा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, तो उस हिसाब से वाटरिंग करनी होगी. देन रेनफॉल इन दैट पर्टिकुलर एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन ह्यूमिडिटी, क्रॉप ग्रोन एंड लाइट इंटेंसिटी. तो ये सारे फैक्टर्स जो है जो डिटरमाइन करते हैं कि क्रॉप में वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी या फिर कैसी होगी, राइट. सो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. वाटर की बात हो रही है, ह्यूमिडिटी की बात हो रही है, तो कुछ दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ लो ह्यूमिडिटी कॉजेज ड्राइंग इफेक्ट्स इन प्लांट. अगर ह्यूमिडिटी कम हुआ तब प्लांट में ड्राइंग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. अगर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हुई, अगर आप कह सकते हो कि 70 से 85% तक या फिर उससे ज़्यादा हुई, तब आप कह सकते हो कि फंगल डिजीज़ इन प्लांट्स दिखाई देता है, क्योंकि बिकॉज when the humidity is very high, that then fungus have their capacity to penetrate inside the plant and cause various disease, that is fungal disease cause करते हैं, right. now let's move forward. अब हमने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं. सो 3 पॉइंट कौन कौन से हमने डिस्कस किए हैं. नंबर 1 that is we have discussed light, number 2 we have discussed heat, and number 3 we have discussed water. हाँ, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज एयर. सो एयर इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैस ऑफ नेचर. तो एयर जो है वो वेरियस गैस का मिक्सचर है. इट इज ऑल्सो अ क्लाइमेटिक फैक्टर affecting plant growth. Climatic factor affecting plant growth, this is again an important point कि air भी एक important constituent है climatic factor का. Basically, CO2 that is carbon dioxide and O2 that is oxygen are the major gases functional in case of plant growth and development. बाकी सारे gases जो है वो भी important है, but अगर हम prominency की बात करें तो CO2 and O2 are the major gases. Accumulation of certain harmful gases such as SO2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो है इथिलीन, मीथेन, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं किसमें, प्लांट ग्रोथ में, राइट. तो अगर प्रोमिनेंसी देखा जाए तो CO2 और O2 का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंसी होता है. अगर हार्मफुल इफेक्ट्स देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथिलीन, मीथेन, दे आर रियली हार्मफुल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. सो हियर कम्स द एंड ऑफ द डिस्कशन. सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार
रिकैप कर लेते हैं। हमने पहला तो डिस्कस किया क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। पहला हमने क्या डिस्कस किया, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट डिस्कस किया। नंबर 1 इज क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। नंबर 2 हमने फैक्टर्स डिस्कस किया। नंबर 3 हमने फोटो पीरियडिज्म भी डिस्कस किया। नंबर 4 एयर। नंबर 5 वाटर। इन सारे फैक्टर्स को आज हमने डिस्कस किया। ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल्स, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, फोटो पीरियडिज्म के एग्जाम्पल डिस्कस किए, फिर खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल डिस्कस किए, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल डिस्कस किए। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी आज हमने डिस्कस किए। सो अब यहीं पे हम अपना क्लास आज के लिए विल एंड अप। इफ़ यू थिंक दैट द कंटेंट इज़ वर्थफुल फॉर यू, please don't forget to hit the like button and to subscribe to our beautiful channel AgriMoon. So stay tuned and soon we will be uploading the lecture third of the horticultural series. Fine? Okay. Jai Hind. Bye bye.